آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آنے والا دور آیوروید کے لیے ہوگا سنہری دور، کہا وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے۔ CM کے ہاتھوں شری یش آیوروید کالج ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کا شاندار افتتاح۔ میونسپل طلباء نے کیا کیرلا میں موجود عالمی درجے کے اسپیس ریسرچ سینٹر اسرو کا دورہ۔ تحقیقی مرکز کے افسران نے کمشنر کو تحفے میں دی راکٹ کی نمونہ نقل۔ طلباء میں جوش و خروش۔ سمواد نامی پروگرام کے تحت ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کی سرپنچوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ اور لیا دیہی مقامات جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ اور ایک ہائی پروفائل شادی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کی شرکت، مگر خود کو PMO دفتر کا سیکریٹری بتانے والے شخص کا پھوٹا بھانڈا۔ بوگس آفیسر اور اس کے ساتھی کو پولیس نے کیا گرفتار، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر کے شری یش آیورویدک کالج اینڈ ہاسپٹل ریسرچ سینٹر کی نئی عمارت کا افتتاح وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ ستارہ تانڈا علاقے میں قائم شری یش آیورویدک کالج و اسپتال کے نئے وسیع و جدید تعمیراتی بلاک کا افتتاح وزیر اعلیٰ فڈنویس، ریاستی وزیر اتل ساوے، راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ اور شری یش پریشد کے سربراہ بسوا راج منگرولے سمیت دیگر معززین کی موجودگی میں انجام پایا۔ افتتاحی تقریب کے بعد وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں بتایا کہ آیوروید قدیم ویدوں میں بیان کیا گیا ایک ایسا شفا بخش طریقہ علاج ہے جو صرف مرض کے آثار پر نہیں بلکہ جڑ تک جا کر علاج کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں آیوروید کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اور ہزاروں غیر ملکی سیاح ہندوستان آ کر آیورویدک علاج حاصل کر رہے ہیں۔ کووڈ کے دوران قوت مدافعت بڑھانے والی زیادہ تر ادویات میں آیورویدک اجزاء شامل تھے، جس سے اس طریقہ علاج کی افادیت مزید ثابت ہوئی۔ فڈنویس نے کہا کہ مرکزی حکومت آیوش کے شعبے کو بھرپور فروغ دے رہی ہے اور ملک بھر میں تربیت یافتہ وید تیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مستقبل کی ترقی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 2047 تک ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہوگا، جبکہ مراٹھواڑہ میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے باعث اورنگ آباد تیزی سے الیکٹرک وہیکل کیپٹل کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں شہر کے معززین، اساتذہ، طلباء اور بڑی تعداد میں شہریان موجود تھے۔ دولت آباد کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں کشٹ روگ شودھ ابھیان کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس ابھیان کے تحت ریاست بھر میں کوڑ کے مریضوں کی تلاش اور ان کے علاج کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ریاست بھر میں کوڑ کی بیماری کی جلد تشخیص اور علاج کے لیے 17 نومبر سے 2 دسمبر تک خصوصی سروے مہم شروع کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں دولت آباد کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر نے مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے دوران ٹیمیں گھر گھر جا کر مشتبہ افراد کی پہچان کریں گی اور طبی افسران ان کی جانچ کر کے مرض کی تصدیق ہوتے ہی فوراً ملٹی ڈرگ تھراپی کے تحت علاج شروع کر دیں گے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد چھپے ہوئے مریضوں کا سراغ لگانا، بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا اور 2027 تک زیرو لیپروسی کا ہدف حاصل کرنے کی سمت میں مضبوط قدم اٹھانا ہے۔ افتتاحی پروگرام میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیپروسی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ناگیش ساورگاؤنکر، ڈاکٹر واکتیکر، ڈاکٹر ہاشمی، ڈاکٹر آنند کھرڈیکر، سنتوش چوہان، سنتوش ڈھسارکر، وکاس بورڈے، چندن گوری اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ عملہ بڑی تعداد میں موجود تھا۔ سلوڑ میں آج نامزدگی فارم داخل کرنے کے آخری دن شیو سینا کی طرف سے عبدالسمیر عبدالستار نے نگر ادھیکش کے عہدے کے لیے اپنا نامزدگی فارم سبمٹ کر دیا۔ اس موقع پر کئی اہم سیاسی رہنما بھی موجود تھے۔ تعلقہ سلوڑ میں شیو سینا کی جانب سے میونسپل چیئرمین کے امیدوار عبدالسمیر عبدالستار نے آج باضابطہ طور پر اپنا نامزدگی فارم داخل کیا۔ فارم جمع کرتے وقت سابق وزیر و رکن اسمبلی عبدالستار، تحصیل پرمکھ کیشو راؤ تائیڑے، درگا بائی پوار اور ونود منڈلیچا سمیت دیگر رہنماؤں کی موجودگی رہی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی عبدالستار نے سلوڑ شہر میں اب تک کیے گئے ترقیاتی کام اور آنے والے دنوں میں ہونے والے مزید ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہریان کو ہم مکمل ترقی کا یقین دلاتے ہیں۔ عبدالسمیر عبدالستار نے کہا کہ ہم ترقی کو ہی اپنا بنیادی ایجنڈا بنا کر عوام کے درمیان جائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شہر میں ہونے والی ترقی، کارکنان کا جوش اور شہریان کا شیو سینا کے تئیں بھروسہ دیکھ کر پورا یقین ہے کہ شیو سینا کے نگر ادھیکش اور کارپوریٹرز بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے۔
म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की खसूसी पहल के तहत म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने स्मार्ट स्टूडेंट्स इम्तिहान के ज़रिए 10 तलबा का इंतखाब किया था, जिन्हें इसरो का दौरा करवाया गया, जो कल शाम बज़रिए तैयारा औरंगाबाद लौट आएंगे। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक यौम इत्फाल के मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुंतखबा तलबा की रवानगी के लिए खुसूसी इंतज़ाम करवाते हुए उन्हें हवाई जहाज़ के ज़रिए बराह रास्त केरला भिजवाया। उनमें से बेशतर तलबा का यह पहला हवाई सफ़र था। इन तलबा ने थुम्बा, त्रिवेंद्रम, केरला में मौजूद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को विज़िट दी, जहां इन तलबा ने रॉकेट का बराह रास्त लॉन्चिंग प्रोग्राम देखा। इसके अलावा माजी में लॉन्च किए गए मुख्तलिफ रॉकेट्स की असल और नकल की एग्जीबिशन का भी मुशाहिदा किया और चंद्रयान 3 की नकल, मुख्तलिफ सैटेलाइट, आर्यभट्ट सैटेलाइट्स, रोहिणी 200 समेत दीगर खलाई मंसूबों की मालूमात हासिल की। तलबा को स्पेस सेंटर के ज़िम्मेदारान ने भारत की पहली इंसानी खलाई मुहिम गगनयान का मॉडल भी दिखाया और इस मिशन की शनाख्त, कैरी और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ अहम मालूमात फराहम की। अफसरान ने ये जानकर खुशी का इजहार किया कि म्यूनसिपल तलबा एक तालीमी इंतखाबी इम्तिहान के ज़रिए यहाँ पहुँचे हैं। इसी मुनासिबत से इसरो के ग्रुप डायरेक्टर आर हरिकृष्ण ने रॉकेट की एक नमूना नकल म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के लिए तोहफे के बतौर पेश की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में पहली बार तलबा को इसरो जैसे आलमी इदारे के खलाई तहकीकी मरकज़ का दौरा करने का मौका मिला। दौरा करने वालों में प्राइमरी स्कूल नारेगांव, हडको N7, हरसूल, इंदिरा नगर बाईजीपुरा, प्राइमरी स्कूल ईंट खेड़ा और मिटमिटा स्कूल के तलबा शामिल थे। म्यूनसिपल शोबे तालीम के HOD व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांड्रे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, किरण तबड़े, मंगेश जाधव, उमा पाटिल और सविता बोम्बर्डे की रहनुमाई में तलबा इसरो गए। नमस्कार, मी ज्ञानदेव सांगळे, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये कार्यक्रम अधिकारी आहे। आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक महोदय माननीय जी श्रीकांत साहेब यांच्या संकल्पनेतून स्मार्ट स्टुडंट एक्झाम घेतलेल्या परीक्षेमधून जे टॉप 11 विद्यार्थी निवडलेले आहेत, या विद्यार्थ्यांना घेऊन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट प्रक्षेपण ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी केरळ राज्यामध्ये थुंबा तिरुवनंतपुरम या ठिकाणी आलेलो आहेत। या ठिकाणी आपण पाहतोय जे GSLV सॅटेलाइट सेंटर आहे, त्यानंतर GSLVची दुसरी प्रतिकृती आहे आणि PSLV आहे आणि जे की आता ज्याच्यावर काम केलं जातं ते NGLVची सुद्धा इथं या ठिकाणी प्रतिकृती लावली। आमच्या महानगरपालिकेच्या शाळेतले हे विद्यार्थी आहेत आणि या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी भेट दिलेली आहे। तर आता आपण या डायरेक्ट विद्यार्थ्यांनाच विचारू की आपल्याला कसं वाटलं ही भेट देऊन। बेटा, तुझं नाव काय आहे? आरोही। तुझ्या शाळेचं नाव काय आहे? मनपा प्राथमिक विद्यालय सिडको N7 छत्रपती संभाजी। बरं, तुला या ठिकाणी भेट देऊन कसं वाटलं? म्हणजे मला खूप छान वाटतंय आणि स्पेसबद्दलची सगळी माहिती मिळाली। स्पेसबद्दल जी मनात शंका होती त्या आता डाऊट ते क्लिअर झाले। स्पेस आणि रॉकेटबद्दलची माहिती मिळाली। आता पुढे वुमन्सला पण पाठवणार आहे स्पेसमध्ये, त्याची सुद्धा माहिती मिळाली। ओके बेटा, तुझी या स्पेस सेंटरला भेट देण्यासाठी निवड कशी झाली? सरांनी म्हणजे जी श्रीकांत सरांनी आमच्या शाळेमध्ये सर्व महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये एक स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूलमध्ये म्हणून एक परीक्षा ठेवली होती। त्यामध्ये 600 प्रश्नांची क्वेश्चन बँक दिली होती। त्यावरती शाळा स्तरीयवर परीक्षा झालेल्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली, त्यांची सिटी लेवलवर परीक्षा झाली, त्यातून आम्ही टॉप 11 तयार झालो। ओके, छान। बेटा, तुझं नाव काय आहे? सोहम सुरशे। कोणत्या वर्गात शिकतो तू? 8वी। शाळेचं नाव? मनप्रा शाळा विटखेडा। तुला कसं वाटलं या स्पेस सेंटरला भेट देऊन? सर खूप छान वाटते। खूप छान वाटतं। काय काय पाहिलं तू? सर रॉकेटच्या आतमधले पार्ट्स वगैरे, अजून सैटेलाइट्स। गंगापुर सब रजिस्ट्रार ऑफिस का इंतज़ाम हेडक्वार्टर पर रहे बगैर ही चलाया जा रहा है और सब रजिस्ट्रार औरंगाबाद से रोज़ाना यहाँ आना जाना करते हैं, जिससे रजिस्ट्री के लिए आने वाले शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। ये इल्ज़ाम मकामी साकिनान ने लगाया। मकामी साकिनान का कहना है कि गंगापुर में तैनात सब रजिस्ट्रार अजीत वीर का तकर्रुर यहाँ के सब रजिस्ट्रार की हैसियत से किया गया है और सरकारी कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक उन्हें हेडक्वार्टर यानी गंगापुर में ही रहना लाजमी है, मगर सब रजिस्ट्रार सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए रोज़ाना औरंगाबाद शहर से यहाँ आना जाना करते हैं। उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने हुकूमत को ये जाहिर किया कि वो हेड क्वार्टर पर मुकीम हैं और इस बिना पर
HRA بھی باقاعدہ طور پر حاصل کیا۔ شہریوں کے مطابق جس کے لیے انہوں نے بوگس دستاویزات کا استعمال کیا، ان کا یہ عمل سرکاری دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان لوگوں نے سب رجسٹرار اجیت ویر کی منمانی اور غیر قانونی طرز عمل کی جانچ کر کے ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ त्यांनी शासन तरतुदीनुसार मुख्यालय राहणं गरजेचं आहे। जर अधिकारी मुख्यालय राहत नसेल तर वरिष्ठांनी त्याच्यावर कारवाई करणं क्रमप्राप्त ठरते, किंबहुना त्यांना त्यांची पदोन्नती रोखता येते किंवा त्यांचा पगार थांबवता येतं, किंवा त्यांना यापेक्षाही गंभीर त्रुटी असली तर त्याला शासकीय सेवेतून पण काढता येते। त्यामुळे आमची JDR साहेबाला मागणी आहे की त्यांनी मुख्यालय न राहता जेवढा आतापर्यंत पगार उचलला किंवा शासकीय नियमाची जी पायमल्ली केली मुख्यालय राहण्याच्या बाबतीत, त्याच्यावर संबंधितावर कारवाई वीर साहेबावर कारवाई झाली पाहिजे। शहर में BJP के नए डिविजनल दफ्तर का इफ्तिताह वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महायुति इत्तेहाद और आइंदा लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के हवाले से अहम इशारे दिए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत इंतखाबात में उम्मीदवारों का इंतखाब और इत्तेहाद के फैसले मकामी सतह पर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में दो पार्टियों के दरमियान तालमेल बनाया गया है, जबकि बाज़ जगहों पर मुकम्मल महायुति के तहत इत्तेहाद कायम है। फडणवीस ने वाज़ेह किया कि सीट शेयरिंग में किसी भी किस्म का तनाज़ा मौजूद नहीं है और आने वाली म्यूनसिपल इंतखाबात में भी साफ और मजबूत तस्वीर सामने आएगी। डिविजनल दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर माहौलियात पंकजा मुंडे, वज़ीर अतुल सावे, वज़ीर ममलिकत मेघना बोर्डेकर, डॉक्टर भागवत कराड़ और दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। फडणवीस ने इस सुझाव और जदीद दफ्तर की तामीर पर मकामी रहनुमाओं की सताइश करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों से ये काबिल फ़ख्र दफ्तर तैयार हुआ है। इस दौरान उन्होंने बिहार असम्बली इंतखाबात का हवाला देते हुए अपोजिशन पर भी शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि बिहार की आवाम ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एतमाद ज़ाहिर करके मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन EVM और वोट चोरी जैसे बेबुनियाद दावों पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मगर अदालत और इलेक्शन कमीशन के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर पाती। फडणवीस ने महाराष्ट्र के आइंदा लोकल बॉडी इंतखाबात में भी भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ज़मीनी हकीकत से नावाकिफ़ हैं और उन्हें भी बिहार जैसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुख्तलिफ अज़ला के मकामी मसाइल के हल के लिए सरपंचों से मीटिंग की और उन मकामात पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दीं। वज़ीर आला संवाद नामी इस खुसूसी प्रोग्राम के तहत आज रियासत भर के मुतादिद अज़ला के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने हर गाँव के ज़ेरे इल्तवा काम, फ़ंड की कमी के सबब रुके हुए मंसूबे, वाटर सप्लाई, रास्ते, सेहत और देही तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया और उन्हें ज़रूरी हिदायत दीं। जालना ज़िला परिषद के CEO दफ्तर से भी ये प्रोग्राम रास्त नशर किया गया, जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू PM मौजूद। सावरगांव के सरपंच उद्धव भगवान राव सानप और मानेगांव जहांगीर की सरपंच आश्विनी संतोष ढेलने ने अपने अपने गाँव में जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ वज़ीर आला को तफसीली रिपोर्ट पेश की। तमाम देहातों में जारी कामों का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा महकमों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। इस संवाद नामी प्रोग्राम के ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश की गई कि रियासत की देही बस्तियों की हमाजहत तरक्की के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंद है। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए इंतज़ाम चलाए जाने वाले फ़ातिमा उर्दू गर्ल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स में 14 नवंबर को यौम इत्फ़ाल के मौके पर बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए। प्रोग्राम का आगाज़ 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में किया गया, जिन्हें बच्चों से बेपनाह मोहब्बत की वजह से चाचा नेहरू कहा जाता है। असातिज़ा ने बच्चों को नेहरू जी की शख्सियत, उनकी अमन पसंदी और तालीम की अहमियत से रोशनास कराया। बाद अज़ां बच्चियों ने तकारीर, नज़्म ख़्वानी, गीत और छोटे छोटे ड्रामों के ज़रिए हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर असातिज़ा ने बच्चों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और तख्लीक़ी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों का एतमाद बढ़ाते हैं। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाली तालिबात को इनामात और असनाद से नवाजा गया, जबकि सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और स्टाफ की खिदमात की तारीफ़ करते हुए इस कामयाब प्रोग्राम को काबिल सताइश करार दिया। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी के नवमुंतखब चेयरमैन डॉक्टर हसीन अख्तर के एजाज़ में अंजुमन अहले कलम और कफ़ील एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक बावक़ार इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेक़ाद किया गया, जिसमें शहर की इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत फारूक अहमद चीफ एडिटर औसाफ जहां ने हासिल की। मौजूद मेहमानान खुसूसी में असलम मिर्ज़ा और खान शमीम खान शामिल थे। निज़ामत के फ़राइज़ नहायत खुश उसलूबी से अंजुमन अहल कलम की सदर डॉक्टर फातिमा फिरदौस ने अंजाम दी। तकरीब में कफ़ील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर फातिमा फिरदौस ने डॉक्टर हुसैन अख्तर का तफसीली तारुफ पेश किया और उनकी इल्मी, अदबी और तंजीमी खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, डॉक्टर सैयद हुसैन अख्तर उर्दू के मुखलिस खादिम, अहले दिल शख्सियत और बामकसद खिदमात का दरख्शां नाम है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी का चेयरमैन मुंतखब होना उनके इस्तेहकाक, मुस्तकिल जिद्दोजहद और उर्दू ज़ुबान से बेलौस वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर हुसैन अख्तर न सिर्फ तंजीम तरक्की उर्दू बीड के फ़ाल सदर हैं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू व फ़ारसी के मोतमिद रुकन भी है। एक मुहक्किक, कलमकार और संजीदा अदबी मिजाज रखने वाले साहब इल्म की हैसियत से उनकी शनाख्त मुसल्लम है। उनकी तहरीरें मुख्तलिफ रसाइल व अखबारात की जीनत बनती रहती हैं, जिनसे उनका आलिमाना तर्ज फ़िक्र और तख्लीकी बसीरत झलकती है। तकरीब में अंजुमन अहल कलम की सदर डॉक्टर फातिमा फिरदौस और कफ़ील एजुकेशन के सदर रमज़ानी खान ने फूलों के हार पहनाकर डॉक्टर हुसैन अख्तर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मौजूद मेहमानान खान शमीम खान और असलम मिर्ज़ा भी मौजूद थे। तकरीब में डॉक्टर शहबाज ज़रीन, सैयदा हुमा, सबा तहसीन, गौहर नायाब, नाजिया आफरीन, सिद्दीकी कौसर जहां के अलावा नासिर बागवान, सहाफ़ी शहाब मिर्ज़ा, इमरान अब्दुल अलीम भाशवान, सैयद फारूक अहमद, साजिद पटेल, जाहिद अल कसीरी, कमरनाज अहमद औरंगाबादी समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर शुक्रिया की रस्म रमज़ानी खान ने अदा की, जबकि इमरान और वसीम राही ने मेहमानों के इस्तकबाल और इंतज़ामात की निगरानी की। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने रियासत भर की तमाम मसाजिद, दरगाह और कब्रिस्तान की 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत दी हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन समीर काजी ने अपील की है कि कोई भी इदारा इस ताल्लुक़ से गफलत न बरतें। वाज़ेह हो कि रियासत की तमाम वक्फ जायदादों को शफाफ और डिजिटल निज़ाम से जोड़ने के लिए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया है। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान समेत तमाम इदारों को अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ात, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मिल्कियत के कागजात, ट्रस्ट बोर्ड की तफसीलात वगैरह पोर्टल पर अपलोड करना होंगी। चेयरमैन समीर काजी ने अपील की है कि 5 दिसंबर आखिरी तारीख है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले इदारे गैर मजाज करार दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी इदारे को दस्तावेज़ात में कोई परेशानी हो तो वो फ़ौरन वक्फ बोर्ड के दफ्तर से रब्ता करें, मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी। रियासत के हर ज़िले में जंगी सतह पर काम जारी है। एक अहम ऐलान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के तमाम दफातर 5 दिसंबर तक बग़ैर किसी तातील के खुले रहेंगे और तमाम मेज़ों पर सिर्फ उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ ही काम किया जाएगा। मज़ीद ये कि 13 रुकनी गैर सरकारी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप, महमूद मदनी ग्रुप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तबलीगी जमात, काजी सर्विस संघ, बरेलवी मकतब फ़िक्र और वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे शामिल हैं। ये कमेटी रजिस्ट्रेशन में रहनुमाई करेगी और कागजी मसाइल हल करने में ताउन फराहम करेगी। साथ ही NGOs को भी अपील की गई है कि वो आगे बढ़कर उम्मीद पोर्टल सेंटर कायम करें। कंप्यूटर ऑपरेटर नौजवानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा। 5 दिसंबर तक शाना बशाना काम करने की अपील के साथ समीर काजी ने वाज़ेह हिदायत दी है कि एक भी दिन की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वक्फ बोर्ड की आला सतही मीटिंग में CEO जुनैद सैयद, खुसूसी अफसरान और मुताल्लिक़ा स्टाफ बड़ी तादाद में मौजूद था। शाहगंज में मौजूद पुराने बस स्टैंड से करीब खुली जगह में रखे प्लास्टिक के पाइप में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर अमले से मौसूला इत्तला के मुताबिक पदमपुरा फायर स्टेशन को कॉल मौसूल हुई थी कि शाहगंज इलाके में मौजूद पुराने बस स्टैंड से करीब खुली जगह पर रखे 35 ता 40 प्लास्टिक पाइप में अचानक आग लग गई है। इत्तला मिलते ही फायर स्टेशन की टीम फौरी जाए वारदात पर पहुंची और फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। ये कार्रवाई चीफ फायर ऑफिसर अशोक एन खांडेकर की रहनुमाई में डिप्टी फायर ऑफिसर विजय राठौड़, ड्यूटी ऑफिसर दीपराज गंगाव ने, फायर फाइटर्स दिनेश मुंगसे, प्रणाल सूर्यवंशी, त्र्यंबक सावंत, मनसूपराव सपकाळ और ड्रायव्हर जगदीश गायकवाड ने अंजाम दी। माझं नाव प्रमुख अग्निशामक दीपराज रमेश गंगावणे, मी पदमपुरा अग्निशमन केंद्र इथं कार्यरत आहे। आम्हाला 15:45 वाजता शाहगंज येथे कचरा डेपो कचरा आग अशी माहिती मिळाली असता आम्ही तात्काळ पदमपुरा अग्निशमन केंद्र इथून रवाना झालो। इथे आले असता आम्ही बघितले असता इथे ST महामंडळाची
जी जागा आहे पुराणी जो जुनं बस स्टँड आहे ती जागा आहे, तिथे पाईपांना आग होती. अंदाजे पाईपाची जी संख्या आहे ते 35 ते 40 ते 50 पाईप आहे. जे पाण्याचे पाईप इथे पडलेले होते त्याला आग लागलेली होती. ते आम्ही त्वरित फायर इंजिनच्या साह्याने 2 लाईन काढून सदर आग विझवली आहे आणि तात्काळ पुन्हा आग विझवून आम्ही आता पदमपूर अग्निशमनाकडे जात आहे. अंदाजे नुकसानाचा विचारून चौकशी करून पंचनामा करून तुम्हाला कळवून येते. अर्धे पाईप पूर्ण जळालेले आहे. जेवढे पण पाईप ठेवलेले होते 40 ते 50 ते अर्धे जळालेले आहे. शहर में वज़ीर आला के मुजव्वज़ा दौरे के दरमियान पेश आए एक वाक़े में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जाली अफसरान को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी, जिन्होंने अपने आप को पीएमओ सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन के तौर पर जाहिर किया। ये वाक़या इतवार की दोपहर 2:30 से 3 बजे के दरमियान 30 गांव के होटल ग्रैंड सरोवर में पेश आया। गिरफ्तार शख्स का नाम अशोक भारत ठोमरे है, जबकि उसका साथी विकास प्रवेश पंडागड़े बतौर बॉडीगार्ड उसके साथ मौजूद था। तकरीब के दौरान अचानक स्टेज पर मौजूद स्टेज सेक्रेटरी ने ऐलान किया, वज़ीर आज़म दफ्तर के सेक्रेटरी अशोक ठोमरे तशरीफ़ लाए हैं। इस ऐलान के बाद पुलिस को शक उस वक्त हुआ जब शहर में पीएमओ के किसी बड़े ऑफिसर की आमद के बारे में उन्हें कोई इत्तला नहीं थी। पुलिस डिप्टी कमिश्नर पंकज अतुलकर ने फौरन कार्रवाई की और साथ में रत्नाकर नौले और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर ने ठोमरे से पूछताछ की। उस शख्स के पास कोई सरकारी शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था और उसके बयानात भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिसके बाद उसका झूठ बेनकाब हो गया। दोनों अफराद एक इनोवा कार MH12 SN 9892 में आए थे। गाड़ी की तलाशी के दौरान हुकूमत हिंद की जाली तख्तियाँ, तिरंगा झंडा, सरकारी अफसरान के अंदाज की अलमारी, चॉकलेटी रंग का सूटकेस और बाकायदा अफसराना लिबास बरामद हुआ। ठोमरे ने इतराफ़ किया कि ये तमाम जाली सामान दिल्ली से तैयार करवाया था। पुलिस तहकीकात में ये भी सामने आया है कि ये दोनों कई दिनों से VVIP नंबरों, सूट बूट और अफसराना शान शौकत के ज़रिए लोगों को धोखा दे रहे थे। उनके मददगारों में सुधीर चौधरी और शैलेंद्र चौहान के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों ही मुल्ज़िमान के खिलाफ MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। औरंगाबाद शहर में मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोने के ज़ेवरात छीनने वाली गैंग को कुंडलिक नगर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 2 मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मुलजिमों को हिरासत में लेकर 1,09,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान जब्त किया गया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पहली वारदात में सुमन वसंतराव निकम 31 अक्टूबर की सुबह 5 बजे मोहटा देवी मंदिर आरती के लिए जा रही थीं कि मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफराद ने उनके गले से सोने के मोती जो पोत में पुरे हुए थे छीन कर फरार हो गए। जबकि दूसरा वाक़या 23 अक्टूबर को पेश आया, जिसमें रामदास भानुदास के मकान में दाखिल होकर नामालूम चोरों ने मोबाइल फ़ोन, तलाई ज़ेवरात और पर्स में रखी नकद रकम समेत कई कीमती अशिया पर हाथ साफ कर दिया था। तफ्तीश के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि 2 मुश्तबा अफराद शाइन मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जो फरार होते हुए देखे गए, जिस पर पुंडलिक नगर पुलिस ने कृष्णा मानिक राव सोलंके, शुभम मदन राठौड़, मयूर डोकियाल और अमन महबूब शेख को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1,09,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान बरामद किया। ये कार्रवाई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे, सब इंस्पेक्टर अर्जुन राउत, PSI गोलेकर और उनके अमले ने अंजाम दी। ताल्लुका पैठन में दिन दहाड़े बैंक के 25 लाख रुपये लूटने वाली टोली को मकामी क्राइम ब्रांच अमले ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 31,56,000 रुपये का माल बरामद कर लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दावरवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक के मुलाजिम गणेश आनंद पहलवान 25 लाख रुपये बोरी में रखकर स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान पैठन पाचोड़ रोड पर 2 नकाबपोश अफराद ने उन्हें रोककर धमकाया और रकम छीन कर फरार हो गए। वाक़या दर्ज होते ही पुलिस सुपरिंटेंडेंट विनय कुमार राठौड़ की हिदायत पर मकामी क्राइम ब्रांच ने फौरी तफ्तीश शुरू कर दी। CCTV और तकनीकी शवाहिद की मदद से पुलिस को भरत राजेंद्र रूपाकर और उसके साथी विश्रव बोंधने, सचिन सोलट और विशाल चांदने पर शक हुआ। जाल बिछाकर चारों को पैठन के मज़ाफ़ात में फ़रार होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्ज़े से लूटी गई रकम, स्विफ्ट कार और मोबाइल फ़ोन समेत कुल 31,56,000 रुपये का माल जब्त किया गया। मुल्जिमान ने इतराफ़ किया कि उन्होंने माली परेशानी के बाइस वारदात अंजाम दी। पुलिस की तेज़ रफ्तार कार्रवाई की हर सतह पर सताइश की जा रही है, जबकि मज़ीद तफ्तीश पाचोड़ पुलिस के सचिन पंडित कर रहे हैं। काल पाचोड पोलीस स्टेशन जिल्ह्यात छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण या ठिकाणी पैठण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे, त्या बँकेचे 25 लाख रुपये एक गणेश आनंदा पहिलवान 59 वर्षाचा सेवानिवृत्त त्या बँकेचा कर्मचारी आहे, तो
एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत घेऊन जात असताना ही सदरची रक्कम 2 अनोळखी इसम अचानकपणे रस्त्यात आले आणि त्यांनी ते पैसे जे आहेत ज्या गुन्ह्यामध्ये होते ते जबरदस्तीने हिसकावून ते पळून गेले होते. सदरबाबतचा गुन्हा पाचोड पोलीस स्टेशनमध्ये तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि LCBचे श्री राजपूत व त्यांची पूर्ण टीम या ज्या गुन्ह्यामध्ये तपास करत असताना 2 टीम त्यांनी तयार केल्या होत्या आणि जे टेक्निकल अनालिसिस करत असताना असं एक लक्षात आलं की त्या ठिकाणी त्या बँकेमध्ये एक व्यक्ती मागील 2 वर्षात तिथे कधीच आला नव्हता. बँकेचे जे काही ट्रान्झॅक्शन झाले होते त्यामध्ये आणि नेमका ह्याच दिवशी तिथे आला. त्याचं घर ज्या ठिकाणी होतं त्याच्या जवळच या बँकेचे एक ब्रांच सुद्धा होतं. तिथे न जाता इथे आल्यामुळे ते संशय बळावला आणि त्यामध्ये अधिक तपास केला असता त्याला ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याला विचारल्यानंतर त्याने तो गुन्हा कबूल केला. यामध्ये त्या आरोपी बरोबर इतर 3 आरोपी सुद्धा होते. त्या 3ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि 100% रिकव्हरी झालेली आहे. एकूण 25 लाख रुपये गेले होते. या गुन्ह्यामध्ये वापरलेली एक स्विफ्ट कार, 8 मोबाईल फोन असे एकूण 31,56,000चा मुद्देमाल आम्ही 100% रिकव्हर केलेला आहे. मला असं वाटतं की यामध्ये LCBची टीम याचं खूप महत्वाचा रोल यासाठी आहे कारण गुन्हा होऊन 12 तासाच्या आत सर्वच्या सर्व आरोपी अटक झाले आणि 100% माल रिकव्हर झालेला आहे. या आरोपींचे नाव आहेत भरत राजेंद्र रुपेकर, विष्णू कल्याण बोधने, सचिन सोलाट आणि विशाल दामोदर चांदणे. या 4ही आरोपींपैकी 2घांचा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. जो मेन यामध्ये ज्याचं मास्टरमाइंड होता तो भरत राजेंद्र रुपेकर होता. याच्यावर 2017 मध्ये भादवी 419, 420 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे, ज्यामध्ये पोलीस भरतीमध्ये डमी कॅन्डिडेट उभा करण्याच्या जे प्रयत्नात त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्याचबरोबर सचिन सोलाट यावर दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल है. शहर के जिनसी इलाके में एक ताजिर से 10,000 रुपये की भत्ताखोरी और जान से मार देने की धमकी पर जिनसी पुलिस ने मुतल्लिका शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. शिकायत कुनिंदा शेख शाहरुख शेख सलीम के मुताबिक मुलजिम इसी गली में रहने वाला और उनका जान पहचान वाला है. 28 अक्टूबर से उसने बार बार ताजिर से रकम का मुतालबा शुरू किया. फ़ोन करके गालियां देते हुए वो कहता था कि मैंने कत्ल किया है, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मार डालूंगा, और रात 8 बजे तक रकम लेकर आने का दबाव बनाया था. जब शिकायत कुनिंदा पुलिस थाने शिकायत देने पहुंचे तो उसी वक्त मुलजिम ने दोबारा फ़ोन करके पूछा कि थाने में क्यों गए और गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकी दी. इस दौरान थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों को भी उसने धमकाया कि बाहर देख लूँगा. इसके बाद मुलजिम ने फिर फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे लिए शूटर तैयार है, किसी भी थाने में गए तो पछताओगे, और घर में मौत होने जैसी संगीन धमकियां भी दी. मामले की संगीनी को देखते हुए जिनसी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ भत्ताखोरी, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. आने वाला दौर आयुर्वेद के लिए होगा सुनहरी दौर, कहा वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने. CM के हाथों श्री यश आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का शानदार इफ्तिताह. म्यूनसिपल तलबा ने किया केरला में मौजूद आलमी दर्जे के स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो का दौरा. तहकीकी मरकज के अफसरान ने कमिश्नर को तोहफे में दी रॉकेट की नमूना नकल. तलबा में जोशो खरोश. संवाद नामी प्रोग्राम के तहत रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने की सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग और लिया देही मकामात जारी तरक्याती कामों का जायजा. और एक हाई प्रोफाइल शादी की तकरीब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने की शिरकत, मगर खुद को PMO दफ्तर का सेक्रेटरी बताने वाले शख्स का फूटा भांडा. बोगस ऑफिसर और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.